ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଈଶୁ ବା ବାଣ ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବାଣ। ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟ କରି ହୁଏ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ ବାହାରର କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ, ନିଜର ମନ। ଗତକାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମନକୁ କିଭଳି ଜୟ କରିବ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ମନକୁ ଜୟ କରିବାର ସହଜତମ କୌଶଳ ଶ୍ୱାସ। ଯୋଗୀଗଣ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଚଳେଇବାତେ ଚଳତ ଚିତ୍ତମ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଚଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବା ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ନିଶ୍ଚଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବେ ଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଯୋଗୀ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱମ୍ ଆପ୍ନୋତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥିର କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀ ନିଜେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱମ୍ ସ୍ଥିରତ୍ୱମ୍ ଆପ୍ନୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ବାୟୋଃ ନିରୋଧୟେତ୍। ସୁତରାଂ ତତଃ ବାୟୁ ନିରୋଧ କରିବା କୌଶଳ ଶିଖ। ଚଳେଇବାତେ ଚଳତ ଚିତ୍ତମ୍ ନିଶ୍ଚଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଭବେତ୍। ଯୋଗୀ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱମ୍ ଆପ୍ନୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ବାୟୋ ନିରୋଧୟେତ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି କର୍ମକାଣ୍ଡ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ଜଳ ଶୁଦ୍ଧି, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣାୟାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଊର୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିବ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମର କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଣ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ, ସ୍ଥିର ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ। ଈଶୁ ହିଁ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। କୈରବଲ୍ୟା ସହଯୋଗ୍ୟମ୍ ଅସ୍ମିନ୍ ରଣ ସମୁଦ୍ୟମେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହା ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନତା ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧକ ଜୀବନ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଯଦି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କାମ ହଉ, କ୍ରୋଧ ହଉ, ଲୋଭ ହଉ, ମୋହ ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ। ଈଶୁ ହିଁ ଏ ଶ୍ୱାସ କି ଶ୍ୱାସ? ଯୋଗୀଗଣ କହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ। ଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ବାଣ, ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରକୃତ ବାଣ। ଈଶୁ ହିଁ ପ୍ରତିଯୋତ୍ସ୍ୟାମି। ଶ୍ୱାସକୁ କିଭଳି ମନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ କରିବ ସେ କୌଶଳ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ହୁଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶିଖି ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କହିଲେ ଗୁରୁନ୍ ଅହତ୍ୱା। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମହାନୁଭାବାନ୍ ଗୁରୁନ୍ ଅହତ୍ୱା ଇହ ଲୋକେ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଭକ୍ତୁମ୍ ଅପି ଶ୍ରେୟଃ। ମହାନୁଭାବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଏହି ଲୋକରେ ଇହ ଲୋକରେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ। ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ମାତୁଳାମ୍ ଶ୍ୱଶୁରାମ୍ ଶାଳାମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିନା। ସେ କହିଥିଲେ ମାମୁଁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶଳା, ସମୁଧି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଏ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ। ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ। ସେ କେବଳ ପିତାମହ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣ ଉଭୟ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି।
आलोचना करिसंती एवं महाभारतर एक अपूर्व अंश होची अनुशासन पर्व। ये अनुशासन पर्व भीष्मकर उपदेश अति अद्भुत विलक्षण उपदेश। अर्जुन जब कहले इमान केमिति मारे इमान होचती पूज्य सी कहले पितामह भीष्म आचार्य द्रोण एठी अर्जुन तांका निज संबंध कहि दैछथि। ए सृष्टि रे दुई प्रकार संबंध गोटे होछि संबंध होछि रक्त संबंध। रक्त संबंध निज परिवार सहित जनार संपर्क है रक्त संबंध पारिवारिक संबंध। गोटे होछि विद्या संबंध। विद्या संबंध होछि जहाँ आम कि शिखिलु गुरु स्थानीय। बर्तमान यही श्लोक नंबर 5 से कहते महानुभावान गुरुन अवत्वा इह लोके भक्ष्यं भक्तुम अपि श्रेयः। इह लोके अर्थात एठी अर्थात ए पृथ्वी रे युद्ध न करी इमान सहित न करी युद्ध आम मागिलु 5टा गाँ दियो से 5टा गाँ दवा मना कले। एबे जब युद्ध न करी केमिति बंचो से कहले भिक्ष मागिकी चलीगले चली। भिक्षा मागिया को अधिकार कार अछि। रास्ता घाटे आम देखुचे भिखारी संख्या कम। भारतवर्ष भिक्षा मागिया वैदिक सनातन संस्कृति रे भिक्षा मागिया अधिकारी जो अधिकार था भिक्षा मागिया एवं श्रद्धार सहित सम्मान सहित आम से भिक्षा दौलु। से किए ब्राह्मण ब्रह्मचारी एवं सन्यासी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी एवं जति ये 3 जन होचंती भिक्षा मागिया को योग्य। कहबा आओ गरीब लोक भिक्षा मागिबे ना तो ता कोन करिवे तांको आप साहाय्य करिवो से को निज गोडे ठिया समाज रे गरीब के रहिबे ना। कहते ब्राह्मण का भिक्षा मागिबे ता ब्राह्मण अर्थ उपार्जन पछे जीवे ना। ब्राह्मण अर्थ उपार्जन करी आय करिबो से पछे जीवे ना। ब्राह्मण कर्तव्य कौन थिला वैदिक युग रे दान नब दान दब। ब्राह्मण माने अछि प्रचंड दानी थिले। आपण जदि कठोर उपनिषद पढ़िबे नचिकेतांकर बापा जने ऋषि ब्राह्मण से तांकर समस्त जाति सुधार करले। अर्थात ब्राह्मण दान नब संचय करिवे। ब्राह्मण प्रवृत्ति संचय करिया प्रवृत्ति नहीं। सन्यासी वर्तमान तो सन्यासी आश्रम करिके रहे। वर्तमान तो सन्यासी आश्रम में रोषे करी गृहस्थ मान को खुआइले। सुनत ये जुग परिवर्तन किंतु सन्यासी मानकर प्राचीन वैदिक काल रे सन्यासी रोषे करिवे नाही अग्नि स्पर्श करिवा मते मना थिला। भिक्षा करिवे केतेबेले भिक्षा करिया जिबे आजिकाली तो आगरू कहि दउ तुम घर आज जाई पहुंची बा न गृहस्थ लोक से तार भोजन करिया समय बढ़िगला परे जने सन्यासी बा जति से भिक्षा करिया जिवो एवं केतोटी घर भिक्षा करिवो 5टी घर भिक्षा करिवो। जणक घर भिक्षा करि अन्न ग्रहण करिवो नाही। अर्जुन का भीतर विचार विकृति घटिछि। अर्जुन का मन रे भ्रांति आसी। की भ्रांति आसी सुन भूल को भूल बोली देखिबा भ्रांति नुहे। भूल को भूल बोली देखिबा भ्रांति नुहे किंतु भूल को ठीक बोली देखिबा। अर्जुन का भ्रांति कौन है तो जो माने शत्रु से शत्रु को मित्र बोली देखिबे। दुर्योधन मित्र को शत्रु बोली देखिबे
अर्जुन शत्रु को मित्र बोली देखिले बाह्य जगत रे शत्रु को समान बोली भाव समस्त हो किसी मना ना किंतु साधक हिसाब रे जदि मोर शत्रु को मित्र बोली भावे कि कहि युद्ध करेनि तुम सहित उदाहरण स्वरूप मु सकाल उठा दरकार सकाल उठिले टिके नित्य कर्म सारी साधना बा किसी कर्म करी हो जो कर्म जगत मंगल पाए किंतु सकाल उठला बेलू भितर आलस्य अच्छी मन कौन टिके सोई पड़ मोर आलस्य सहित मोर तंद्रा सहित मोर युद्ध करिया उचित कि नुहे किंतु कह मित्र स्वजन ही कथम हत्वा सेमान संगे युद्ध केमिति करी तो एठी से कहले भिक्षा करी भी बंचिबा दरकार कहलो अर्जुन तमे कौन जानी न भिक्षा करबा पाए तुमर अधिकार नाही तुम क्षत्रिय क्षत्रिय द्वारा भिक्षा करबा अधिकार नाही किंतु महाभारत रे आपण जदि टिके पढिबे पंच पांडव भिक्षा करछन केतेबेले भिक्षा करछन ना जेतेबेले जतु गृह रुचि चली जाइछन्ती से समय से निज को ब्राह्मण में सजाइछन्ती ब्राह्मण में सजाई की भिक्षा करछन से भिक्षा करछन एवं सेही संस्कार होबे तो तांको भीतर रहि जाइछि जो पाइ से कहउछन्ती भैक्षम भक्तुम महानुभाव गुरुन अहत्वा इह लोके भैक्षम भक्तुम अपि श्रेय अर्जुन तुम्हें इठी बसी गोटे भल विचार के कहदेला शब्द टी हूँ श्रेय श्रेय शब्द वैदिक शब्द कठोर उपनिषद यदि पढ़े श्रेयश्च प्रेयश्च ये शब्द नचिकेता पाठरे प्रयोग कराई ये संसार रे जहाँ सब अच्छी ताको आम दुई भाग में विभक्त करदे गोटे हूँ प्रेय गोटे हूँ श्रेय प्रेय हूँ जहाँ आमको भल लगे जहाँ आमको भल लगे प्रिय श्रेय हूँ जहाँ आम भल टिके आउ शुणु जहाँ आमको भल लगे द्वितीय हूँ जहाँ आम भल आम दैनंदिन जीवन में आम जदि आलोचना करिबा आम देखिबा आमको जहाँ भल लगे ताहा हुए तो आम पाई भल नुहे जहाँ आमको भल लगे ताहा हुए तो आम पाई भल नुहे जहाँ आम पाई भल नुहे भल लागुथिले मध्य ताको परिहार करबा उचित अर्जुन कहले मो पाई कोन मु भावछि एटा मोर श्रेय एई श्लोकर द्वितीय पाद से कहले काहे कि भिक माके चलिबा श्रेय ही गुरुं हत्वा अपि इह रुधिर प्रतिष्ठान अर्थकाम भोगान एव तु भुंजिय काहे कि ना गुरुजन मान को मारिले मध्य एही लोकरे रक्त सिक्त अर्थ काम रूपक भोग मान भी तो भोग करी जति मैं युद्ध करी युद्ध कले मोर पूज्य गुरु मान को मारिया पड़ो गुरु तत्वा गुरु मान को मारी गुरु एठी गुरु बहुवचन कराई दुई वचन नुह ये गुरु शब्द जेतु बहुवचन कराई पूर्व सेटले गुरु दुई जन अर्जुन प्रतिपक्ष कौरव मान पक्ष दुई जन गुरु थे किए थे द्रोण एवं कृप आचार्य द्रोण आचार्य कृप ताहले से तो दुई जन होगले एठी गुरु गुरु मान को बहुवचन कराई अर्थात से गुरु एवं गुरुजन उभय को गोटे संगे धर्म गुरु अहत्वा गुरु मान को मारिले इह एही लोकरे रुधिर प्रतिष्ठान रक्त सिक्त अर्थ काम भोगान एवं भुंजिय जदि गुरु मान को मारिली ताले एही लोकरे मु जेति दिन बंची रहिबी
ये संसार भोग हो राज्य संपद हो ये सब गुरु रक्त रंजित भोग ये केतोटी कथा टे बुझी ना रक्त कौन अर्थ कामा कौन आम देह भीतर रक्त अच्छी ना ना देह को जब काटिदेले कौन कारण खंडिया खंडिया गले अल्प खंडिया होती किसी लस्सी बाहर लस्सी तो छेली रस रस बाहर आज बेसी घटी बेसी खंडिया कौन बाहर रक्त बाहर एवं देह विच्छिन्न हेले रस रक्त बाहर पुणी से रस रक्त देह को सुस्थ कर रस रक्त पुणी देह को सुस्थ कर जो खंडिया है पुणी जोड़ी ये रक्त कौन ये रस कौन आमर जोड़िए देह अच्छे जोड़िए देह को कह गोटे हूँ स्थूल गोटे हूँ सूक्ष्म कारण को धरवा ना स्थूल जड़ देह आ गोटे मनोमय देह ये स्थूल देह खंडिया हो गले रक्त बाहर पड़े ये स्थूल देह सातटी वस्तु कथा आम कहूँ सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा स्नायु ये सातटी आवरण सातटी धातु कथा आम कह स्थूल देह सूक्ष्म देह चिंता भाव कर्म ज्ञान निष्ठा बुद्धि ब्रह्म अन्वेषण ये सूक्ष्म देह ये सातटी वस्तु सातटी धातु स्थूल देह जमी ऊपर टे आंचुरी देले रस बाहरी पड़ुची मनोमय देह भीतर देह टे आंकुड़ी हो गले चिंता बाहरी कौन बाहर चिंता रस सहित चिंता रक्त सहित भाव रक्त सहित भाव स्थूल देह आघात हेले रक्त बाहर रस बाहर सूक्ष्म देह आघात हेले चिंता बाहर पड़ो ना भाव बाहर साधारण मनीष चिंता को लेकर रहे साधारण मनीष चिंता को लेकर रहे किंतु साधारण मनीष हेले किंबा टिके मननशील मनीष हेले तार भाव सृष्टि हो निजर भाव सबुठी कही हुए ना निजर भाव को समस्त निकट में प्रकाश करी हुए ना से अनेक समय कहती तो कथा लुचाऊ किंतु निज भाव कह क्या पाखे जब गुरु दीक्षा समय कहती निजे मंत्र व साधना जहाँ शिखिच ता अन्य निकट में प्रकाश करूना सेमती मन कथा कह क्या श्री रामकृष्ण परमहंस गोटे पद कविता गाउले मनेर कथा कहिब किसई कहिते माना मनेर कथा कहिब किसई कहिते माना दरदी नइले प्राण बाँचे ना मन कथा काहे कहि मो मन कथा बुझिबो किए किंतु गोटे दरदी लोक नहेले तो बंची होनी न कहि भीतर छटपट होछ मनेर मानुष कहे जे जना से तार नयन एते जाय बचे ना से दुई के जना जे प्रकृत रे मनर मनीष मनेर मानुष कहे जे जना तार नयन एते जाय बचे ना से आखिरे ही देख जना पड़ जाए से ठीक मोर मनर मनीष ये दुनिया रे प्रकृत मनर मनीष कहा जहाँ पाखे मन धनी मुझे कहली अर्जुन जो भली श्रीकृष्ण पाखे सखा पाखे जो मन खोली कहीगले से तो अनेक आगे कहीपर न एक कथा द्रोण पाखे कही था ये कथा भीष्म
कृष्ण पाखे कही ये कथा कौन कृपक पाखे कही नुह से रामकृष्ण परमहंस कहले हुए तो जड़े दुई जन किए थे भाग्यवान से व्यक्ति जहाँ पाखे से मनीष किए पाई जो मनीष निकट निजर भाव कथा से कहीदेव